Good morning, student. Again, welcome in your second lecture of the first chapter of class 11. So, in yesterday lecture, we have discussed about some living word. Chapter 1, living word, where we have read what is living, where we have read some living characteristic feature like metabolism, about cellular organisms, the consciousness. So these are the some topics which we have discussed in yesterday class. Today's we will read diversity in living world. Chapter 1.2 diversity in the living world में diversity of variations कितना है. So first student, you just understood what is the meaning of diversity. मतलब diversity मतलब different kinds. Diversity in living organisms means different kinds of living organisms. So our word is filled with diversity of living one. बहुत सारे वो हैं. This is called as लिविंग की जो डाइवर्सिटी है, इट इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है स्टूडेंट. सो जस्ट स्टार्ट अवर लेक्चर. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स यहाँ पर एक टर्म आया लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. बट इट इज़ potted plants, insected word. B, potted plants, insected word, your pets and other mammals and other animals and plants. ये क्या हो सकते हैं? insects हो सकते हैं, potted plants हो सकते हैं, birds हो सकती हैं. ठीक है. और other animals और plants. There are also several organisms that we cannot seen by naked eyes. अब जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे organisms हैं which we cannot see in our naked eyes, but which is present all around us, जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं. If you were to increase the area where you make observation, the range and variety of organisms you see would increase. ठीक है. यदि हम जैसे जैसे अपने एरिया को, जो हमारा ऑब्जर्वेशन का एरिया हम बढ़ाते जाएं, तो रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल इंक्रीज. मीन्स कोई एक भी इंच और एक भी सेंटीमीटर की जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो. बट वी कैन नॉट सी इन आवर आइज. हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, बट दे आर प्रेजेंट देयर, दे हैव देयर एग्जिस्टेंस. दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उन सबको हम क्या कह रहे हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओबियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in each. ठीक है. Each different kinds of plants, animal, organisms that we see represented a species. अब एक टर्म आया है species. किसको हम species कह रहे हैं? ठीक है. Different kinds of plants, animals, organisms, जो भी जितनी वैरायटी हम देख रहे हैं, ठीक है, these all are called as स्पीशीज़. ठीक है. तो अब यहाँ पे स्पीशीज़ को एक ये टर्म्स हमारा कहाँ यूज़ होगा? ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन. क्लियर स्टूडेंट. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन. तो कितनी स्पीशीज़ हैं? लगभग 1.7 to 1.8 मिलियंस. ठीक है. These refer to biodiversity. और ये different kinds of living organisms refers to biodiversity. or number of organisms or number of types of organisms present on earth. We should remember here that we explore new area and even old one. New organisms are continuously being identified. I stated earlier there are millions of plant and animal in the world. We know the plants and animal in our area and by local name. अब आपको पता हुआ है कि कितने सारे हमारे मतलब यदि ऑल ओवर वर्ल्ड यदि हम और ऑल ओवर अर्थ काउंट करें तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं. और वो लोकल लैंग्वेज पर, वो एक दूसरे की लैंग्वेज ना समझने के कारण लोकली हम उसको एक नेम दे रहे हैं. समझ में आया? आर यू क्लियर स्टूडेंट?
कि एक यदि आप किसी चीज़ को एक कॉमन हिंदी नेम दे रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि जापानीज़ में भी वही नेम हो, तो मीन्स लोकली हम उसको अलग अलग नेम देते हैं, ठीक है। These local name would vary from place to place. Clear? ये country, even within a country, एक country के भीतर भी एक जो species है उसके नाम different हो सकते हैं. Probably you would recognize the confusions that would be created if we would not find way or means to talk to each other. और refer to organisms we are talking about. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? यदि दो साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ टू साइंटिस्ट डिस्कस, अब वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब बोथ आर टेलिंग देयर ओन लैंग्वेज, और वो उस लैंग्वेज के पीछे क्या है, वो स्पीशीज़ कन्फ्यूज़न में आ रही है कि कौन सी स्पीशीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अब क्या है, देयर इज़ नीड ऑफ वन कॉमन नेम। अब क्या रिक्वायरमेंट आई कि कोई एक कॉमन नेम होना चाहिए। हेयर देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग of living organisms such as particular organisms is known by the same name all over the world. अब यदि ये कोई स्टैंडर्डाइज नेमिंग होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो रिकॉग्नाइज होगी, दिस इज कॉल्ड एज देयर साइंटिफिक नेम, वो साइंटिफिक नेम होंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ पार्ट ऑफ साइंस, तो जो नेम दिए हैं दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नेम, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, मीन्स हर स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर नेमिंग करना जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम हो, इट इज़ कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। द प्रोसेस बाय विच we need to standardize the naming of living organisms such as particular organisms or same all over the world is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is not possible when the organisms is described correctly or we know to what organisms the name is attached to. It is called as identification. अब नेम तो आपने दे दिया, किसके बेस पर नेम दे रहे हो, ठीक है। द नॉमेनक्लेचर और नेम इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल है, व्हेन द ऑर्गेनिजम्स इज डिस्क्राइब करेक्टली, जब ऑर्गेनिजम्स को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। सो वी नो व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटैच्ड टू आइडेंटिफिकेशन, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स का नेम अटैच्ड है, इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। I will ask you definitions of identification, definition of nomenclature. You just write in your copy or notebook. What is identification? What is nomenclature? Identifications, the characteristic feature on which organism's name is attached is called identification. Clear, student? In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organisms. अब क्या हुआ, स्टडी की फैसिलिटीज़ के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए और स्टडी को इजी करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, एक एक नेम असाइन किया, ठीक है, एक एक ऑर्गेनिजम्स को एक एक नेम असाइन किया। दिस इज एक्सेप्टेड बाय which was accepted by biologists all over the world. The plant's scientific name are based on agreed principle and organisms, ठीक है, which and these all are provided by International Code of Botanical Nomenclature. किसके थ्रू था वो नेम जो अप्रूव्ड हुआ, इट was ICBN. What is the meaning of ICBN? You just write in your copy. It is International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature. So, the name which is given by every and each species by approved
by ICBN, or it is same in all over the world. Clear, student? You may ask how the animal taxonomist has evolved International Code of Zoological. तो ये किसके लिए था? ये प्लांट्स के लिए. किसके लिए? ये प्लांट्स के लिए. लाइक एनिमल के लिए भी एक अप्रूव्ड बॉडी है. वो क्या है? ICZN. जेड किसके लिए है? जू के लिए, जूलॉजिकल. बी किसके लिए? बॉटनी के लिए. IC और N सेम है. तो क्या मीनिंग हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर. आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा. जो प्लांट्स के लिए है वो ICBN अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू प्लांट्स को आइडेंटिफाइड किया है और नेमिंग की है. एनिमल्स की नेमिंग ICGN. Clear? Now next, they also ensure that such a name has not been used by any other known organisms. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organisms. Each name has two components, जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम. अब थर्ड पॉइंट क्या आया कि कोई भी स्पीशीज़ है उसके नेम रिपीट नहीं होना चाहिए. ये एक लिमिटेशंस थे ICBN और ICZN ऑर्गेनाइजेशन के. तो ये लिमिटेशंस थे कि कोई भी स्पीशीज़ जो नॉन स्पीशीज़ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसका नेम रीयूज़ नहीं होना चाहिए. ठीक है. और that's a reason they have decided to each components has two group. First one is generic name, second one is specific epithets. ठीक है. तो दो नेम है, जेनरिक नेम. फर्स्ट है जीनस, सेकंड वन इज स्पीशीज. क्लियर स्टूडेंट? क्लास 10th में भी आपने रीड किया हुआ ना, जस्ट लाइक जो वो इमली है, टेमेरिंडस है, उसका इंडिका. ठीक है. टेमेरिंडस इंडिका. ठीक है. मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका. तो ईच एंड एवरी स्पीशीज हैज़ टू नेम. फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकंड नेम इज स्पीशीज. एवरी organisms has two name, first genus, second one is species. This system provide a name with two components. जो दो components दिए जा रहे हैं, it is called as binomial nomenclature. कौन सा है? binomial nomenclature. Two name system. Binomial nomenclature means two name system. The naming system given by Cornelius Linus. किस साइंटिस्ट ने दिया था? Learn the name of scientist, Carolus Linnaeus. AEUS. ठीक है. The naming system use a two word format was found convenient. और ये बहुत convenient है. ठीक है. Scientific name of the mango, for examples mango. एक एग्जाम्पल्स लिया मैंगो. ठीक है. मैंगो की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बट उसका जो कॉमन नेम है वो मैग्नीफेरा. It has also binomial name. In the name Magnifera represent the genus. Magnifera represent the genus while Indica. ठीक है. मैग्नीफेरा मतलब मैंगो का हो गया नेम. मैग्नीफेरा. और स्पीशीज़ इसकी डिफरेंट हो सकती है. स्पीशीज़ लाइक इंडिका. ठीक है. इट इज़ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ हो गई हमेशा इंडिका. अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है. ठीक है. मैग्नीफेरा जो इसका जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर पे होगा, और जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होगा. ठीक है. ये चेंज नहीं करना. ये चेंज करने से वो रॉन्ग हो जाएगा. एम और आई पर ध्यान देना. एम कैपिटल लेटर पर, आई स्मॉल लेटर पर होगा. ठीक है. और
कैसे उस पर लिखा जाएगा, लैटिन एंड राइट इन इटैलिक्स मैटर पर, ठीक है, इटैलिक्स फॉर्म पर लिखा जाएगा ये स्पेसिफिक एपिथेट्स. Biological name are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Clear? The first word of biological name represented by genus. Magnifera क्या है? Genus. While the second name denoted by specific epithet. ठीक है, ये स्पेसिफिक एपिथेट के फॉर्म पर होगा. बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम विच हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड. दोनों अंडरलाइंड होने चाहिए. मैग्निफेरा एंड इंडिका. इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग botanical name of the organisms. Clear? The first word denoted the genus start with a capital letter, and while specific epithets start with a small letters. ठीक है, मैग्निफेरा कैपिटल लेटर पर, इंडिका का आई स्मॉल लेटर पर. क्लियर? एंड इट्स इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. ये चूँकि लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है और ये शो लैटिन ओरिजिन को शो करता है. द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस एंड सेकेंड वर्ड विल बी क्या होगा सेकेंड वर्ड? स्पेसिफिक एपिथेट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. नेम ऑफ द ऑथर्स अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक epithets. The end of the biological name and the written it is abbreviated form Magnifera indica. It indicates that the species was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. The process is called classification. और ये जो process है, it is called as classification. Now, what is the definition of classification? Classification is a process by which anything is grouped into the convenient categories. Again, I will repeat it. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character. Classification वो process है जिसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करके उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ग्रुप कर दिया जाता है. और वो स्पेसिफिक कैटेगरी किसके बेस पर है? वो उस कैरेक्टर के ऊपर है जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल character. Now, we easily recognize groups such as plants or animal or dogs, cat and insects. अब इसके बेसिस पर हम किसी भी organisms को classified कर सकते हैं. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organisms in this group. और इस movements को पूरा करने के लिए किसी भी organisms को classified करना है, we have to take some characteristic feature or associate some certain characteristics which the organisms in this group, वो organisms में वो characteristic feature appear होना चाहिए. This is called as classification. What image do you see? What image do you see when you think of dog? जैसे for example हमने एक dog को observe किया. अब डॉग को देखने के बाद हमारे दिमाग में कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा? ओबियसली ईच वन ऑफ अस सी विल डॉग नॉट कैट. हमने डॉग देखा है, कैट नहीं. तो डॉग और कैट में जो डिफ्रेंशिएट कैरेक्टर है वो हमारे दिमाग में आएगा. यस, मतलब उस कैरेक्टर की प्रेजेंस एब्सेंस के अकॉर्डिंग वी विल क्लासीफाइड कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज कैट और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज डॉग. अब डॉग और कैट को एक छोटा बच्चा भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहा है ना, जो कि ऑब्जर्व हो रहा है, जो कि जिसको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. उसके बेस पर उसने बता दिया ये डॉग है और ये कैट है. क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो
each organisms has some characteristic feature on that we grouped or classified that particular organisms. Now we were to think of Alsatians, we know that we are talking about, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो मीन्स जैसे एल्सेशियस डॉग देखा है तो हमने क्यों उसको एल्सेशियस डॉग कह रहे हैं, बिकॉज सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर प्रेजेंट देयर, कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिमार्क करके ही उसको हमने एल्सेशियंस कैटेगरीज में रखा हुआ है. सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अब यदि हम एक मैमल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल्स कोई भी मैमल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, एनिमल, तो किस बेस पर उसको मैमल्स कह रहे हैं. Like if we were to say mammals, we would of course think of mammals with external ear and body hair. Otherwise हम देखेंगे उसके external ear अच्छे से clear है, उसकी body पर hair है और mammillary gland है. यदि हमको पता है तभी हमने उसको mammals कहा है, ठीक है. तो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया. इफ़ वी विल टॉक अबाउट वीट, यदि कोई हम वीट का एक फिगर देख रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं कि वीट है, ये गेहूँ है, गेहूँ का पौधा है, तो किस बेस पे किया, अकॉर्डिंग दैट सम रिमार्केबल फीचर. मीन्स हम किसी को भी आइडेंटिफाइड करते हैं उसके रिमार्केबल फीचर, इवन दो स्टूडेंट को भी आप आइडेंटिफाइड कर रहे हो उसके नेम के अकॉर्डिंग और कुछ रिमार्केबल फीचर के अकॉर्डिंग, और आगे जाके आपको वैसे नेचर का कोई एक तीसरा स्टूडेंट मिलेगा तो आपको ही इज़ जस्ट लाइक लुकिंग दैट पर्टिकुलर गर्ल, आप उसको उससे आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है ना. तो मीन्स हेयर क्या एक बात निकल के बाहर आई कि कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिनके बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं. हैंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस एंड प्लांट्स एनिमल आर कन्वीनियंट कैटेगरीज we used to study further, ठीक है. The scientific terms for these categories are taxes. अब एक टर्म निकल के आया taxes. कौन सा टर्म आया है, taxa, TAXA, taxa. What is taxa? The scientific terms we will use for different categories is called taxa. अभी आप taxa को हम क्लासिफिकेशन में और क्लियर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स किंगडम, आपने 10th में रीड किया हुआ है, 9th में रीड किया है 5 किंगडम सिस्टम, याद करिए आप लोग. तो 9th में 5 किंगडम सिस्टम रीड किया हुआ है. तो किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, जीनस, दीज ऑल आर कॉल्ड एज टैक्सा. वो सब डिफरेंट टर्म्स जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म्स इज कॉल्ड taxa. The scientific terms for these categories is called taxa. Here we must recognize that taxa can indicate categories or different plant label. Label को शो कर रहा है. taxa क्या है, categories और label. हाईएस्ट लेवल, फिर सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, फिर फिफ्थ लेवल, लाइक सो ऑन, ठीक है. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म आर टैक्सा, वीट ऑल्सो फॉर्म आर टैक्सा, animal, mammals, dog, all are taxa. But we know that dog is mammals and mammals are animal, and animal, mammals, dogs represented taxa in different level. हर organisms एक taxa को show करता है. वो taxa different level of classification, the terms which is used in different level of classification is called taxa, and taxa classified particular organisms in a group. Clear, student? So these are the some points we have discussed. Now next, the basis of characteristics, all living organisms classified into different taxa. The process of classification is called taxonomy. Taxonomy में क्या read करोगे आप, classification. The process of classification is called as taxonomy. External, internal structure along with the structure of cell, development process, ecological informations of organisms are essential and form a basis of taxonomy study. यदि हमें किसी ऑर्गेनिजम्स को पूरी कम्प्लीटली स्टडी करना है तो फर्स्ट उसको हमको क्लासीफाइड करना होगा डिफरेंट टैक्सा पर, डिफरेंट लेवल पर, और डिफरेंट टैक्सा डिफरेंट लेवल पर हम क्लासीफाइड क्यों कर रहे हैं,
किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इट मे बी मार्फोलॉजिकल, इट मे बी एनाटॉमिकल, जो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ह्यूमन बीइंग हैव always being interested is knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with the reference to their own use. The early days human being needs to find sources for the basic needs of food, clothing and shelter. समझ में आया? इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि वो डेवलप हुआ है. अर्ली ह्यूमन बीइंग से एडवांस ह्यूमन बीइंग तक डेवलप हुआ है. तो डेवलप होके उसका इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के बेस पर इवोल्यूशन हुआ. क्यों, कैसे हमने फाइंड आउट किया इवोल्यूशन हुआ? टू सी सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर. समझ में आया? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा है. ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हुई. उसने हैंड से चलना शुरू किया. ठीक है, धीरे धीरे उसका जो है पिन्ना और भी क्लियर हुआ. ठीक है, उसकी एक मेंटल पावर बढ़ी, उसका जो हाइपोथैलेमस और ये सब ये इंक्रीज हुआ. तो कुछ चेंज हुआ ना, तभी हमने उसको आइडेंटिफाइड किया कि ये डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर. और जैसे जैसे और सेकेंडली जैसे जैसे उसका एनवायरनमेंट चेंज होता गया, उसकी नीड्स चेंज होती गई और उसमें नए नए कैरेक्टर्स आते गए. तो ह्यूमन बीइंग का जो जैसे डेवलपमेंट है तो बेसिकली उसकी बेसिक नीड्स के बेस पे ही हुआ है. उसमें फूड आ गया, क्लोथिंग आ गया और शेल्टर हो गया. पहले वो फूड उसकी रिक्वायरमेंट थी, फिर उसने अपने को सेव करने के लिए क्लोथिंग करना शुरू किया, फिर उसको अपने शेल्टर करना शुरू किया, फिर एग्रीकल्चर शुरू किया. तो ये क्या है? इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इससे इवोल्यूशन हुआ. तो इवोल्यूशन इज ऑल्सो it is the change of some characteristic feature. I think students you have cleared this one. Why we have need of classification, what is taxa, what is taxonomy, what is system. Now next is taxonomy category we will take in next lecture. Thank you student, have a nice day.